اختیار کی سینیگال کے وزیر خارجہ شیخ نیانگ سے ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان اور سینیگال کے درمیان دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ دونوں وزرائے خارجہ کا باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں تعاون بڑھانے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ پاکستان اور سینیگال کا کثیر الجہتی فورمز پر تعاون اور رابطہ مزید بڑھانے پر بھی اتفاق ہوا۔ پاکستان اور سینیگال نے اقوام متحدہ میں تعاون اور رابطہ مضبوط بنانے پر بھی اتفاق کیا ہے۔ خبر شامل کریں گے، تشدد کی سیاست کرنا، اسلحہ سے لیس ہو کر احتجاج کرنا پی ٹی آئی کا وتیرہ بن چکا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی اسلام آباد میں پریس کانفرنس ہوئی۔ ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کارکن کی جانب سے سیکیورٹی اہلکار پر فائرنگ کا کوئی جواز نہیں تھا۔ پی ٹی آئی نے لانگ مارچ کی بھی کال دی۔ پی ٹی آئی کے مقاصد اور عزائم پوری طرح دیکھ چکے ہیں۔ مسلح ہو کر دن دہاڑے سیکیورٹی اہلکار پر فائرنگ قابل مذمت ہے۔ تشدد پی ٹی آئی کا نظریہ ہے، انہوں نے ہمیشہ تشدد کی سیاست کی ہے۔ ان کا کوئی ایک احتجاج بھی پرامن نہیں ہوا۔ آج کے واقعے سے بہت سی چیزیں دنیا کے سامنے آئی۔ شام کی عدالت نے مفرور سابق صدر بشار الاسد کو سزائے موت سنا دی ہے۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق شام کے معزول صدر بشار الاسد کو ان کی غیر موجودگی میں سزا سنائی گئی۔ شام کی عدالت نے بشار الاسد دور کے سیکیورٹی عہدیدار عاطف نجیب کو بھی سزائے موت سنائی ہے۔ شامی عدالت کا کہنا ہے کہ بشار الاسد کو پیشگی منصوبہ بندی اور جان بوجھ کر قتل کے الزامات میں سزائے موت سنائی گئی ہے۔ خبر دیں گے آپ کو، میر رضا کے خون میں بے ہوشی کی دوا کی تصدیق ہو گئی، گولی کمر پر لگی۔ کراچی کے نوجوان میر رضا کی شرٹ کا کیمیکل جانچ مکمل کر لیا گیا اور رپورٹ پولیس کو موصول ہو گئی۔ تفتیشی ذرائع کے مطابق کیمیائی جانچ کے دوران شرٹ پر نمک کے تیزاب کے شواہد مل گئے۔ میر رضا کے خون کے نمونے میں بے ہوشی کی دوا کے اجزاء بھی پائے گئے ہیں۔ میر رضا کیس میں پولیس کی مزید خامیاں سامنے آ گئی۔ تفتیشی ذرائع نے بتایا کہ میر رضا کی شرٹ کیمیائی تجزیے کے لیے چند روز قبل لیب بھیجی گئی تھی۔ تفتیشی حکام کے مطابق کئی دن گزر جانے کے باوجود چائے وقوع کی جیو فینسنگ نہیں کروائی گئی اور میر رضا کا موبائل ڈیٹا ریکارڈ بھی حاصل نہیں کیا گیا۔ تفتیشی حکام کا کہنا ہے کہ میر رضا کی اسمارٹ واچ کی فورینسک بھی نہیں کروائی گئی۔ امریکی اور اسرائیلی حکام کے شام سے مذاکرات کامیاب ہو گئے، جس کے بعد شام میں خفیہ مقام پر موجود نیوکلیئر مواد جلد ہٹائے جانے کا امکان ہے۔ امریکی نیوز ویب سائٹ کی رپورٹ کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ شام اور اسرائیل کے درمیان اتفاق رائے ہو گیا ہے کہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی IAEA شام میں خفیہ مقام پر موجود نیوکلیئر مواد اپنے قبضے میں لے گی۔ شام کے خفیہ مقام سائٹ 99 پر موجود نیوکلیئر مواد اسرائیل اور امریکہ کے لیے تشویش کا باعث رہا ہے۔ بشار الاسد حکومت نے خفیہ نیوکلیئر پروگرام کے تحت لکواری ری ایکٹر قائم کیا تھا۔ بشار الاسد حکومت کے خاتمے کے بعد IAEA کو شام کی نیوکلیئر مقامات تک رسائی حاصل ہوئی۔ حافظ نعیم نے پھر ثابت کر دیا کہ جیائی آمریت کی گود میں کھیلنے والی جماعت رہی۔ وہ سستی شہرت کے لیے لاشوں پر سیاست کرنا بند کریں۔ سندھ حکومت کی ترجمان سعدیہ جاوید کا بیان، ان کا کہنا تھا کہ نئے صوبوں کا قیام آئینی طور پر ممکن ہے اور صوبائی اسمبلی کی منظوری لازم ہے۔ سندھ کی دھرتی کی تقسیم کی سازش کو کسی صورت قبول نہیں کیا جائے گا۔ سعدیہ جاوید نے کہا کہ نئے صوبوں کے شوشے چھوڑنے کے بجائے مقامی حکومتوں کو مضبوط بنانا اصل حل ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جماعت اسلامی کراچی میں لسانی سیاست کو ہوا دے کر امن تباہ کرنا چاہتی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ مذاکرات کے بعد آئندہ کے لائحہ عمل کے بارے میں کچھ بتانے سے انکار کر دیا۔ اوول آفس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر نے صرف اتنا کہا کہ امریکہ ایران کے خلاف کارروائی تیز کر سکتا ہے۔ امریکہ ایران سے پہنچائے گئے نقصانات کا ہرجانہ طلب کرنے جا رہا ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ اس وقت اپنا ہرمز کا کنٹرول صرف امریکی بحریہ کے پاس ہے۔ ہماری ناکابندی ناقابل تذکیر رہی ہے، یہ فولادی دیوار کی مانند ہے اور ہم صرف ان لوگوں کو داخل ہونے دیتے ہیں جنہیں ہم اجازت دینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ صورتحال کچھ پیچیدہ ہے کیونکہ ایران کبھی کبھار آبی گزرگاہ میں بارودی سرنگیں بچھا دیتا ہے۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ہم ان بارودی سرنگوں کا سراغ لگا لیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ہم نے پوری آبنا ہرمز کو بارودی سرنگوں سے صاف کر دیا ہے۔ خبر شامل کریں گے، ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی نے 6 ٹاپ ملٹری کمانڈرز تعینات کر دیے ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق یہ تعیناتیاں جنرل اسٹاف، پاسداران انقلاب اور بسیج میں کی گئی ہیں۔ رپورٹس کے مطابق احمد وحیدی کو میجر جنرل کے عہدے پر ترقی دے کر پاسداران انقلاب کور کا کمانڈر ان چیف مقرر کیا گیا، جبکہ مصطفیٰ ایزدی ان کے نائب ہوں گے۔ ریئر ایڈمرل علی عثمائی IRGC نیوی کمانڈر اور حسین طائب کو بسیج فورس کا سربراہ مقرر کیا گیا۔ اسی طرح میجر جنرل علی عبدالحی کو مسلح افواج کا سربراہ مقرر کیا گیا، جبکہ بریگیڈیئر جنرل کیومرس حیدری ان کے ہوں گے۔ سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی نے محمد باقر ذوالقدر کو اپنا سیاسی مشیر، جبکہ ڈاکٹر محسن رضائی کو سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل میں اپنا نمائندہ مقرر کیا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے پاکستان بزنس کونسل کے وفد کی ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں سرمایہ کاری، کاروباری مسابقت اور نجی شعبے کے کردار پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
हुकूमत और कारोबारी बिरादरी के दरमियान मौसर राब्ते मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक हुआ। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि कारोबारी शोबे की तरक्की के लिए टेक्नोलॉजी और डिजिटल तब्दीली अपनाना ज़रूरी है। सरमायाकारों के लिए मखसूस तिजारती तौर पर काबिल अमल और सरमायाकारी के लिए तैयार मनसूबे पेश करना होंगे। टैक्स निज़ाम की तश्कील में कारोबारी बिरादरी से वसी मुशावरत ज़रूरी है। हुकूमत पॉलिसी और रेगुलेटरी रुकावटें दूर करे, कारोबारी शोबा सरमायाकारी और जिद्दत पर तवज्जो दे। इराकी हुकूमत ने ऐलान किया है कि अमरीकी फ़ौज 30 सितंबर तक इराकी कुर्दिस्तान से मुकम्मल इनखला करेगी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीकी फ़ौजी इनखला के लिए कुर्दिस्तान में इराकी और अमरीकी हुकाम के दरमियान राब्ता हुआ, जिसके बाद इराकी हुकूमत ने ऐलान किया कि अमरीकी फ़ौज 30 सितंबर तक इराकी कुर्दिस्तान से मुकम्मल इनखला करेगी। इराकी हुकूमत के मुताबिक कुर्दिस्तान में अमरीकी फ़ौजी अड्डे इराकी सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले किए जाएंगे। इराकी हुकूमत का कहना है कि कुर्दिस्तान से अमरीकी फ़ौजी साजो सामान और अहलकारों की मुंतकली जारी है। याद रहे कि 2024 में इराक और अमरीका ने अमरीकी मिशन की मरहलावार मुंतकली पर इत्तफाक किया था। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और अब आपको बताएंगे ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने दावा किया है कि अमरीका ने ईरान के साथ जंग के आगाज़ के तकरीबन 20 रोज़ बाद मुज़ाकरात की भीख मांगी। हालांकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंग के इब्तदाई दिनों में ईरान से गैर मशरूत हथियार डालने का मुतालबा किया था। ईरानी सरकारी टीवी पर नशर होने वाली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब्बास अराग़ची ने कहा कि जंग के आगाज़ पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर सिर्फ 2 अल्फाज लिखे थे, गैर मशरूत हथियार डालना, और अमरीका इस वक्त ईरान से मुकम्मल तौर पर सरेंडर करने का मुतालबा कर रहा था। पाकिस्तान और जापान के दरमियान 35 करोड़ जापानी येन की ग्रांट के मुआहदे पर दस्तखत हो गए। ग्रांट के मुआहदे के तहत वफाकी सिविल सर्विस अफसरान को जापान में मास्टर्स के लिए 16 और PhD के लिए 1 स्कॉलरशिप दी जाएगी। वजारत इक्तिसादी उमूर में मुनक़दा तकरीब में जापानी सफारतखाने, जायका और वजारत के आला हुक्काम ने शिरकत की। $22 लाख के मसावी ग्रांट मुआहदे पर सेक्रेटरी इक्तिसादी उमूर मोहम्मद हमीर करीम, सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी मिरान मुहिउद्दीन सुब्रो और जायका के चीफ नुमाइंदे यूसोके शेनवास ने दस्तखत किए। रिकॉर्ड ऑफ डिस्कशंस पर दस्तखत जापानी सफ़ीर एकामास्टो शोइजी ने किए। 2018 से अब तक GDS स्कॉलरशिप के तहत 8 बैचेस मुस्तफीद हो चुके हैं, जिससे अफसरान के इस्तेदादकार में इजाफा हुआ। पाकिस्तानी हुकूमती अफसरान को जापान मुख्तलिफ कलील मुद्दती तरबियती कोर्सेज के लिए भी बाकायदगी से मदऊ करता है। सूद पर पैसे लेकर HIV के शिकार बच्चे का इलाज करा रहे हैं। हमने बच्चों के इलाज के लिए अपनी चारपाइयां तक फरोख्त कर दी। वालिद का अदालत में बयान। सिंध हाई कोर्ट में कराची के वलीका अस्पताल में ज़ेरे इलाज बच्चों में HIV की मुंतकली के केस की समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि सिंध में 1200 बच्चों में HIV की तशखीस हो चुकी। दरख्वास्त के ज़ेरे इल्तिवा होते हुए 9 बच्चे इंतकाल कर चुके। दौरान समाअत मुतासिरा बच्चे के वालिद ने अदालत को बताया कि हम सूद पर पैसे लेकर बच्चों का इलाज करा रहे हैं। हमने बच्चों के इलाज के लिए अपनी चारपाइयां तक फरोख्त कर दी। हमें 1 रुपए तक की इमदाद नहीं मिली। वलीका अस्पताल कराची में HIV फैलने के मामले पर अदालत ने 37 अफसरान और मुलाजिमीन को शो कॉज जारी कर दी। आपको बताएं कि ट्रंप इंतजामिया ने गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ मुहिम के दौरान अब तक 1,75,000 से ज्यादा अमरीकी वीजे मनसूख कर दिए हैं। अमरीकी महकमा खारजा ने वीजे मनसूख करने के लिए नए अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। हुक्काम के मुताबिक अब तक 1,75,000 से ज्यादा अमरीकी वीजे मनसूख किए जा चुके हैं। महकमा खारजा का कहना है कि हमला, चोरी, मनशियात, नशे में ड्राइविंग, जिनसी जराइम, फ्रॉड और बच्चों से बदसलूकी समेत मुख्तलिफ जराइम वीज़ा मनसूखी की बड़ी वजूहात हैं। इमिग्रेशन निज़ाम के गलत इस्तेमाल और कौमी सलामती को खतरे में डालने वाले अफराद के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। हुक्काम के मुताबिक सदर ट्रंप और वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की क़यादत में वीज़ा जाँच और मनसूखी का अमल जारी रहेगा। अक़लियतों के कौमी दिन पर सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अलग अलग पैगामात में मुबारकबाद पेश की। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा कि अक़लियतों के कौमी दिन पर मैं तमाम पाकिस्तानियों, बिलखुसूस हमारे कौमी और मजहबी अक़लियती बरादरियों से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानियों को दिली मुबारकबाद का पैगाम देता हूँ और क़ायदे आज़म के अल्फाज आज भी हमारी रियासत की रूह और असास के हवाले से हमारी रहनुमाई करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान हर साल मुल्क में अक़लियतों की मौजूदगी, कौमी धारे में उनकी शमूलियत और उनकी खिदमात को खराज तहसीन पेश करने की कौमी सतह पर अक़लियतों का दिन पुरअज़म अंदाज में मनाता है। वज़ीर ख़ारजा सागदार ने ईरानी हम मनसब अब्बास अराग़ची से रब्ता करके खित्ते की सूरत-ए-हाल और हाल ही में तय पाने वाले मक्का दिफाई मुआहदे पर तबादला ख्याल किया है। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सागदार ने ईरानी हम मनसब अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक रब्ता करके हाल ही में पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के माबैन तय पाने वाले मक्का दिफाई मुआहदे और खित्ते की मौजूदा सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया। खबर एजेंसी का बताना है कि दोनों वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते की बदलती सूरत-ए-हाल और अमन और इस्तेहकाम के लिए की जाने वाली कोशिशों पर भी तबादला ख्याल किया। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तानी हम मनसब को ओमान के साथ अपना हुर्मस में
नई तजारती राहदारी के हवाले से होने वाली हालिया गुफ्तगू पर एतमाद में लिया। दूसरी जानब वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने अब्बास अराग़ची को मक्का दिफाई मुआहदे के हवाले से आगाह किया और बताया कि मुआहदे का मकसद स्ट्रेटेजिक ताउन और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम लाना है। खबर शामिल करेंगे। पाकिस्तान की जानिब से कोलंबिया में ज़लज़ले से जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कोलंबिया में ज़लज़ले से कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इज़हार। वज़ीर आज़म की कोलंबिया के सदर, अवाम और मुतासिरा ख़ानदानों से दिली ताज़ियत। पाकिस्तान की कोलंबिया के ज़लज़ले मुतासिरीन से यकजहती का इज़हार। ज़लज़ले में ज़ख्मी होने वाले और मुतासिरीन के लिए वज़ीर आज़म की नेक तमन्नाएं। वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान मुश्किल घड़ी में कोलंबिया के अवाम के साथ खड़ा है। ज़लज़ले में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से हमदर्दी और ताज़ियत का इज़हार करते हैं। खबरों का सिलसिला मज़ीद कुछ आगे बढ़ाएंगे और अब आपको बताएंगे ISPR समर इंटर्नशिप प्रोग्राम जारी। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ की 6000 से ज़ायद तलबा और तालिबात के साथ खुसूसी नशिस्त हुई। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ ने ISPR समर इंटर्नशिप प्रोग्राम 2026 के तहत 21 मुख्तलिफ स्टेशन से 6150 से ज़ायद तलबा और तालिबात से खिताब किया। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ ने बलूचिस्तान की तारीख, अलहदगी पसंद बयानिए, दहशतगर्दी, इंसानी हुकूक, कौमी सलामती और नौजवानों के किरदार पर तफसीली इज़हार ख्याल किया। उन्होंने नौजवानों से खिताब करते हुए कहा कि बलूचिस्तान के मसाइल का हल अलहदगी पसंदी या तशद्दुद नहीं बल्कि आइनी, सियासी, इंतजामी और तरक्याती ज़राए के मौसर इस्तेमाल में है। बलूचिस्तान में अलहदगी पसंद और दहशतगर्द तंजीमों की सियासी हिकमत अमली का बुनियादी जरिया तशद्दुद है। फिलहाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का भरपूर मुकाबला, उनके नेटवर्क का मुकम्मल खात्मा करना होगा। जाफर एक्सप्रेस के मुसाफिरों, मूसा खेल में शहरियों और तुरबत में मजदूरों को निशाना बनाना इंसानी हुकूक और हक़ ज़िंदगी की संगीन खिलाफ वर्जी है। नौजवानों को इंतहा पसंद और रियासत मुखालिफ बयानियों का मुकाबला करने के लिए ज़हनी, इल्मी और फिक्री तौर पर तैयार करना होगा। दहशतगर्दी के खिलाफ इस जद्दोजहद में हमारी ज़बान की ताकत, दलील, इल्म, इबलाग और अपनी ज़हनी सलाहियतों को भी बरोए कार लाना होगा। के साथ पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली का इल्जाम लगाते हुए पोलिंग में ताख़ीर और अपने पोलिंग एजेंट्स को रोकने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। आज़ाद कश्मीर के ज़िला बाग और हवेली की 4 नशिस्तों पर पीर को पोलिंग हुई, जिसके बाद वोटों की गिनती जारी है और नताइज सामने आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली का इल्जाम लगाया है। पीपल्स पार्टी की नायब सदर शरी रहमान ने कहा है कि कहीं पोलिंग वक्त पर शुरू न की गई और कहीं हमारे एजेंट्स को रोका गया, उस पर वजाहत तलब की जाए। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयद बुखारी ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन धांधली की हर शिकायत पर कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। उनका काम शिकायत पर फौरी कार्रवाई करना होता है, वो वजाहतें और तसल्लियाँ क्यों दे रहे हैं?